Good morning, dear students, and welcome to 10 plus 2 mathematics class. Students, today we will solve exercise 4.2 questions 1st, 2nd, 3rd, 7th, and 8th by using the properties of determinants. बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर आप एक से ज़्यादा ऑपरेशंस इकट्ठे लगा रहे हो तो जो रो या कॉलम ऑपरेशन में अफेक्टेड हो जाता है या उसका प्रत्येक एलिमेंट बदल जाता है तो उस रो या कॉलम का फिर से ऑपरेशन में यूज़ नहीं करेंगे। Z plus C. Applying operation C1 implies C1 plus C. Meaning of this operation is each element of C2 is added in corresponding element of C1. Each element of first column is written as sum of corresponding elements of first column and second column. Here, there is a change in first column. Now, elements of first column are x plus a, y plus b, z plus c. There is no change in C2 and C. Now, in this determinant, columns C1 and C3 are identical. And property 3 says, if any two rows or two columns are identical, means corresponding elements are same, then value of determinant is equal to 0. Is equal to 0. This is 0. Why? Because C1 and C3 are identical. This is equal to right hand side. Therefore, left hand side is equal to right hand side. Hence, value of determinant x plus a, y plus b, z plus c is equal to 0. Proved is equal to 0. Proved. Students, question number 2 is find the value of this determinant is equal to 0 by using the properties of determinants and without expanding. Now, let us take left hand side. Left hand side is equal to a minus b, b minus c, c minus a, b minus c, c minus a minus a, c minus a minus b, b minus c. अब हम क्या करेंगे? ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। बच्चों, आप भी ट्राई कर सकते हो। ऑपरेशन अलोंग आर रो भी कर सकते हो, अलोंग कॉलम भी अप्लाई कर सकते हो। लेट अस applying an operation C1 implies C1 plus C2 plus. Each element of C1 is written as sum of the corresponding elements of C1, C2 and C3. We get. Now there is a change in C1. A minus B plus B minus C plus C minus A. B minus C plus C minus A plus A minus B. C minus A plus A minus B plus B minus C. There is no change in C2 and C3. B minus C, C minus A minus B. C minus A minus B, B minus C. After cancelling C from C, B
बी से कैंसिल हो जाएगा, सी से ए, सी से ए बी है। Every element of C1 is 0. B minus C। बच्चों आप देख रहे हैं कि C1 का प्रत्येक एलिमेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर। Therefore, value of determinant is equal to 0 because each element of C1 is 0. This is equal to right hand side. Therefore, left hand side is equal to right hand side. Hence, determinant of A minus B, B minus C, C minus A, B minus C, C minus A minus B, C minus A minus B, B minus C is equal to 0. Correct. Now, question number 3 is find the value of this determinant is equal to 0. Solution: left hand side is equal to 2, 7, 65, 3, 8, 75, 5, 9, 86. Students, applying C1 implies C1 plus 9 C2. Therefore, change in column C1. We have 2 plus 9 into 7, 3 plus 9 into 8, 5 plus 9 into 9. Columns C2 and C3 are same. Is equal to 7, 8, 9, 65, 75, 86. After solving, we get 65, 75, 86, 7, 8, 9, 65, 75, 86 is equal to 0 because C1 and C3 are identical. This is equal to right hand side. Therefore, left hand side is equal to right hand side. Hence, determinant of 2, 7, 65, 3, 8, 75, 5, 9, 86 is equal to 0, 2. Now dear students, we solve next questions by using the properties of determinants and expanding. बच्चों, डिटर्मिनेंट हल करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है, जब डिटर्मिनेंट में कुछ कॉमन लेंगे तो या तो रो वाइज कॉमन लेंगे या कॉलम वाइज कॉमन लेंगे। बच्चों अब हम एक्सरसाइज 4.2 का 7 क्वेश्चन प्रूव करते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। क्लियर? आओ बच्चों इसका प्रूफ निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर ab ac ba माइनस b स्क्वायर bc ca cb फिर अब आप देख रहे हैं फर्स्ट रो में a कॉमन है, सेकंड रो में b और थर्ड रो में c। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम में a कॉमन है, सेकंड कॉलम में b कॉमन है और थर्ड कॉलम में c कॉमन है।
ठीक है, तो आप कॉमन ले लीजिए पहले। टेकिंग कॉमन A, B, C from R1, R2 and R3। A आपने R1 से कॉमन लेना है, B आपने R2 से और C R3 से। हमारे पास बाहर क्या आएगा, A, B, C। क्या क्या बचेगा, माइनस A, B, C, A माइनस B, C, A, B और माइनस C। अब आप A C1 से कॉमन लीजिए, B C2 से एंड C C3 से। अगेन टेकिंग कॉमन A, B and C from C1, C2 and C3 B है। तो हमारे पास बात क्या रहेगा, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, -1 1 in first column, 1 -1 1 second column, 1 1 -1 in third। क्लियर। अब हम कहीं दो जगह किसी रो या किसी कॉलम में जीरो बनाने की कोशिश करते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। अप्लाइंग R1 implies R2 implies R1 plus R2 and R3 implies R1 plus R3। बच्चों जो रो या कॉलम किसी ऑपरेशन के बाद अफेक्ट हो जाता है उसको आपने बाद में यूज नहीं करना। जैसे R2 यहाँ क्या हो गया, अफेक्ट हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज, इसका फिर से आपने ऑपरेशन में यूज नहीं करना, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, बाय अप्लाइंग दिस ऑपरेशंस R1 तो सेम रहेगा, R2 में क्या आएगा 1 प्लस -1 -1 प्लस 1 1 प्लस 1। R1 का प्रत्येक एलिमेंट R2 के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ प्लस होके कहाँ चला जाएगा, R2 में चला जाएगा। सिमिलरली R1 का प्रत्येक एलिमेंट किसके साथ प्लस होगा, R3 के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ, और कहाँ लिखा जाएगा, R3 में। क्लियर। आगे नेक्स्ट A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर -1 1 1, क्या करें 0 0 2 0 2 0, ये बन जाए। ठीक है, ना हमारे पास फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो है, सेकंड रो और थर्ड रो में भी 2 जीरो है। तो आप कहीं से किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग, चलो मैं इसको एक्सपेंडिंग अलोंग C1 करता हूँ, किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, C1। मेरे पास क्या आएगा, A स्क्वायर, B स्क्वायर -1 reading first row and first column, we have 0 2 2 0 minus 0। अगर एलिमेंट ही 0 है तो क्या बन जाएगा, 0। रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि बाहर एलिमेंट क्या पड़ा है, मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है 0, तो उसको क्या कर देगा 0। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 0, तो सारे रिटर्न को क्या कर देगा 0। हमारे पास ये आएगा A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस 0 माइनस 4 is equal to A square, B square, C square 4 is equal to 4A square, B square, C square। कितना आया, 4A square, B square, this is equal to right hand side। Therefore
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आंसर प्रूव्ड। आंसर प्रूव्ड। ये तो आपका क्वेश्चन प्रूव होगा। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 8 उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। प्रूव दैट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू having elements 1a, a square, 1b, b square, 1c, c square is equal to a minus b, b minus c, c minus a। ये प्रूव करना है। तो इसको भी बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड is determinant having elements 1a, a square, 1b, b square, 1c, c square। अब बच्चों आप देख रहे हैं इन फर्स्ट कॉलम all elements are equal having each element 1, so we can make two elements 0। ठीक है, by applying operations। applying R2 implies R2 minus R1 and R3 implies R3 minus R3। तो हमारे पास चेन किसमें आएगा R2 और R3 में। तो R1 remains same, 1 minus 1 B minus A, B square minus A square, 1 minus 1 C minus A, C square minus A। और नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 1A a square 0 b minus a, this can be written b plus a into b minus a 0 c minus a, c plus a into c minus a। ये हमारे पास ठीक है। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम से कुछ कॉमन आ सकता है। सेकंड और थर्ड में से we can take common b minus a from second row and c minus a from third row। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी b minus a, यहाँ भी b minus a है, लेकिन यहाँ 0 है, तो 0 into b minus a करेंगे तो कितना आएगा 0। तो आप यहाँ b minus a into 0 कर सकते हैं, 0 into b minus a, तो हम सेकंड रो से क्या कॉमन आ जाएगा b minus a। और सिमिलरली यू कैन डू हियर, यू कैन राइट हियर c minus a। ठीक है, तो यहाँ c minus a R3 से कॉमन है। तो taking common b minus a from R2 and c minus a from R3। हमारे पास क्या आएगा, बाहर b minus a into c minus a, अंदर बचेगा 1a square 0 1 b plus a 0 1 C plus a। अब आप देख रहे हो इन फर्स्ट कॉलम देयर आर टू एलिमेंट्स व्हिच आर 0। तो एक्सपेंड कर दो अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 B, हमारे पास क्या आएगा B minus A, C minus A, 1 B plus A, 1 C plus A। element into second order determinant obtained by first row and first row, 1 B plus A, 1 C plus A। नेक्स्ट माइनस 0 डिटरमिनेंट देखने की जरूरत नहीं क्योंकि एलिमेंट ही क्या है 0, यहाँ भी क्या आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारे पास B minus A into C minus A, C plus A minus दैट के अंदर आएगा B plus A। क्लियर, B minus A, C minus A, C plus A minus B minus A, B minus A, C minus A, C minus A। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, A minus B into B minus C into C minus A।
तो आप यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं, a माइनस बी बन जाएगा। यहाँ c माइनस ए रहने दीजिए, यहाँ भी -1 कॉमन लेके हमारे क्या इसका अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा, b माइनस सी। -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए इक्वल टू a माइनस बी, b माइनस सी इंटू c माइनस ए। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Therefore, left hand side is equal to right hand side. This proof ये भी proof हो, ठीक है। क्या प्रूव करना था, वैल्यू ऑफ दिस थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू b माइनस सी इंटू c माइनस ए।